Namaste. I, JVN Neha Sharma, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Method. So, in today's lecture, we are discussing about IP addressing, classful IP addressing. This is very important topic uh, for CN lab as well as CN theory, and this is also very important with respect of gate examination and any kind of competitive examination with regarding engineering. So basically, IP addressing. Why we are using IP addressing? We are here discussing network layer, right? And in network layer, the main functionality of network layer is logical addressing, which is IP addressing, right? So IP addressing, each device have their IP, which is connected over the network, right? And this is the unique identification for any device connected over the network, right? Even in cyber crime, we identify the hacker or the attacker by the IP address of the device. So this is very important topic for the security aspect as well as for the identification, right? So let's start. So introduction of classful IP addressing. In IP addressing, there are two types of IP addressing, classful and classless. In today's lecture, we are discussing about classful IP addressing. So in classful IP addressing, IP address is, what is IP address basically? So IP address is an address having information about how to reach a specific host, how to reach a particular device, right? Especially outside the LAN. So an IP address is a 32-bit unique address having an address space of 2 to the power 32. Generally, there are two notation in which IP address is written: dotted decimal and hexadecimal notation. So below you can see the dotted decimal notation. Here you can see the dotted decimal notation, in which there are the bits, numbers and bits, and when you translate this into numeric, you got this. Like you all know about this bit conversion or not? Means okay. Let's first discuss this. So here you can see 0 0 0 1 1 1 1, right? So this is basically start from either you have to start from right or left. So if I start from left, this is 128, then this is 64, then 32, then 16, 8, 4, 2, 1. So basically 1 into 2, 2 into, then again उसका डबल हो जाएगा, which is 4, then उसका डबल 8, then उसका डबल 16, then उसका डबल what 32, then उसका डबल 64, then उसका 64 into 2 is 128. So here you can see the bits 1 1 1 1 1 because this is present. 31 कैसे बनेगा? तो 31 बनाने के लिए क्या करेंगे? ये तो हो गई हमारी 16 8 4 2 1, इनको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 31 0 1 1। तो बेसिकली 2 1 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। तो 2 और 1 बिट पे क्या है हमारा? 1 1 है, तो ये हो गया 3। सिमिलरली फॉर 11, अगर हमें 11 चाहिए तो कितना हो जाएगा? 8 4 2 1 देखें तो 8 8 और 2 10 प्लस 1 11 हो गया। तो ये क्या बन गई हमारी? 1011 का 11। और अगर 128 है, क्योंकि 128 पे 1 है और बाकी सारी क्या है? 0, तो दिस इज 128। so this is how this IP address we got after translating these bit addresses. So 128.11.3.31 is dotted decimal IP address, and next is hexadecimal. So in hexadecimal notation, you see here, these are the bits basically, right? And in hexadecimal notation, you have to take 4 bits, right? So 1011 is what? इसमें हम हेक्साडेसिमल में 9 के बाद ABCDE शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? 8421, मतलब कि ये कितना है? 10 है। तो 10 हुआ तो ये क्या बन गया? 8। और इसकी बात करूँ मैं तो इसमें कितना बन गया? 8421 कितना बन गया? 8 और 4 12 और एक 13।
तो ये 13 के लिए क्या लिया हमने ई, क्योंकि 10 से शुरू करते हैं ए बी सी डी ई, तो 10 11 12 13, तो ई क्या आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट शुरू करेंगे हम। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से 10 कन्वर्ट करते जाएंगे इन्हें, जैसे कि यहाँ पे डी देखेंगे तो 8 4 2 1, 8 और 4 12 प्लस 1 इज 30। हाँ, ये 1 तो इसके लिए हो गया क्योंकि 4 4 के बिट्स बनाएंगे हम, तो ये 1 तो इसके लिए हो गया 0 0 0 1 के लिए, और 1 1 0 1 के लिए 3 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 1 0 1 5 के लिए हो गया, और 0 1 1 1 किसके लिए हो गया, 7 के लिए हो गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट किया तो हमारी पूरी क्या बिट बन गई है, 751D95EA। ठीक है, so 0 into 751D95EA. So this is hexadecimal notation of IP address. Some points to be noted about a dotted decimal. So the value of any segment is between 0 and 255, both included. And there are no zeros preceding the value in any segment. 054 is wrong and 54 is correct. तो आप अपने मन से जीरो नहीं लगा सकते यहाँ पे। Yeah. So now let's start with classful addressing. So classful addressing means there are classes. So the IP addresses is divided in the ranges, between the ranges, and these are divided into 5 subclasses. This 32-bit IP address is divided into 5 subclasses. These are class A, B, C, D, and E. So each of these class has a valid range of IP addresses. Class D and E are observed. Sorry, the class D and E are reserved for multicast and experimental purposes only. The order of bit in the first octet determine the class of IP address. IPv4 address is divided into two parts. So in any IP address, there are two parts. First is network ID and second is host ID. So the class of IP address is used to determine the bit used for network ID and host ID and the number of total network and host possible in that particular class. So each ISP or network administrator, ISP is internet service provider. So each ISP or network administrator assign IP address to each device that is connected to the network. And this IP address is unique. So here you can see in this diagram for class A, network ID and host ID. For class B, network ID, host ID. So here you can see byte 1, byte 2, byte 3, byte 4, क्योंकि 32 बिट का होता है ये, तो 32 बिट के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे। तो अब क्लास डी जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए रिजर्व है, और क्लास ई जो है वो फुली रिजर्व है। तो हमारा जो मेन जो काम है, या फिर जो हमारा मेन जो क्लासिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, वो क्लास ए बी सी के लिए हो रहा है बेसिकली। तो नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। सो दिस इज लाइक, यहाँ पे खाली एक बाइट के लिए नेटवर्क आईडी है, बाकी सारी होस्ट आईडी है। यहाँ पे दो दो बाइट की है, यहाँ पे 3 बाइट की नेटवर्क आईडी है एंड 4 बाइट की होस्ट आईडी है, और यहाँ पे पूरा ये रिजर्व है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आईपी एड्रेसेस जो है वो ग्लोबली मैनेज होते हैं बाय इंटरनेट असाइन नंबर्स, IANA एंड रीजनल इंटरनेट रजिस्टर्स। अब इनको मैनेज करने के लिए इतनी सारी डिवाइसेस होती हैं, उनके इतने जो कि कनेक्टेड है नेटवर्क पे, तो उनको मैनेज करने के लिए कोई ऑथराइज्ड बॉडी तो होगी, तो वो कौन है, IANA और RIR। While finding the total number of host IP addresses, two IP addresses are not counted and therefore decrease from the total count, because the first IP address of any network is a network number, where the last IP address is reserved for the broadcast IP. So let's start with class A. So IP address belonging to class A are assigned to the network that contain a large number of hosts. The network ID is 8-bit long and the host ID is 24-bit long. तो 24 प्लस 8 मिलके कितना बन गया, 32। और हमारे आईपी एड्रेस कितने बिट्स की होती है, 32 बिट्स की होती है। तो उसमें हमने ऊपर में पढ़ा था कि 1 बिट की यहाँ पे नेटवर्क आईडी है, तो ये कितनी हो गई, 8 हो गई। और बाकी की कितनी बची हमारी, 32 में से कितनी बची बाकी की,
वो क्या हो गई हमारी होस्ट आईडी हो गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 8 बिट की हो गई और 8 3 जा 24, तो 24 बिट की क्या हो गई हमारी होस्ट आईडी हो गई। क्योंकि अगर 32 बिट की है मतलब कि एक बाइट हमारा कितना है 8 का होता है, तो 8 8 8 8 8 4 जा कितने हो गए 32। तो क्लास ए में नेटवर्क आईडी होगी 8 बिट की और होस्ट आईडी होगी 24 बिट की। देन क्लास बी में 16 बिट की ही नेटवर्क आईडी होगी और 16 बिट की ही होस्ट आईडी होगी। देन क्लास सी में कितना हो गया 8 8 8 24 बिट की नेटवर्क आईडी हो गई और 8 बिट की होस्ट आईडी हो गई। और क्लास डी और क्लास ई तो हमारा मल्टीकास्ट एड्रेस और रिजर्व है, तो इनकी बात हम बाद में करेंगे। The higher order of bit of the first octet in class A is always set to 0. The remaining 7 bit in the first octet are used to determine network ID. तो ये जो network ID है, अब इसमें first bit तो 0 रखेंगे और बाकी की जितनी जो 7 bits हमारी बची है उसको हम यूज़ करेंगे network ID में। 24 bit की host वो जो हमारी host ID है वो यूज़ करेंगे to determine the host in any network. Default subnet mask जो होता है class A के लिए वो क्या होता है 255 कुछ भी हो सकता है आगे एक्स एक्स एक्स। therefore class A has a total of टू दी पावर 7 माइनस 2, मतलब कि इसके पास कितनी आईडी हो गई 126 नेटवर्क आईडी। हेयर टू एड्रेसेस इज सब्ट्रैक्टेड बिकॉज हमने क्या किया 000 को हटा दिया और 127 को हटा दिया, क्योंकि ये दोनों जो है वो स्पेशल एड्रेसेस होते हैं जो कि रिजर्व्ड होता है, क्योंकि 0 तो फर्स्ट बिट के लिए हो गया और वो लास्ट बिट के लिए हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे से 2 जो है हटाए हैं और इसी तरीके से हम 2 जो है वो होस्ट आईडी में से भी हटाएंगे। तो 2 की पावर 24 माइनस 2, तो कितनी होस्ट आईडी हो गई 16,777,214। 16 lakh 777,77214 host IDs हो गई। So IP addresses belonging to class A ranges from 1 1 माइनस तो क्लास ए के जो भी हमारे आईपी एड्रेस होंगे वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेंगे 1 से लेके 126 तक बिलोंग करेंगे। तो 7 बिट का यहाँ पे नेटवर्क हुआ, 0 स्टार्टिंग बिट हुई और 24 बिट की हमारी होस्ट हुई। क्लास बी की बात करेंगे हम इस तरीके से, तो 16 बिट का नेटवर्क आईडी हो गया, 16 बिट का होस्ट आईडी हो गया, ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें भी सेम हायर ऑर्डर बिट का अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑक्टेट जो है क्लास बी का वो 10 से सेट होता है। ए में 0 पे सेट था, अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे 10 पे सेट हो रहा है, ठीक है। तो द रिमेनिंग 14 बिट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन नेटवर्क आईडी। तो अब बची कितनी यहाँ पे 14 बिट्स बची ना, क्योंकि 2 तो चली गई 1 और 0, 2 बिट चली गई 16 में से, तो बची कितनी 14। तो 2 की पावर कितनी हो गई 14, तो इतने तो नेटवर्क एड्रेस हो गए। और होस्ट की बात करेंगे तो फिर से हमें 2 हटाने पड़ेंगे क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट होती है, तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है इसके लिए। तो 65534 जो है वो इसका होस्ट एड्रेस होता है। तो यहाँ पे हमारी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी 128.0 से लेके 191.255 तक, ठीक है। इसके आगे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्लास सी की बात करेंगे, क्लास सी में 24 बिट लॉगिन नेटवर्क आईडी। अब यहाँ पे कितना हो गया 110। क्लास ए में 0 था, बी में 10 हुआ, अब यहाँ पे 110 हो गया। बच्चे कितने आप 24 थी तो 3 बिट इसको दे रही, 21 बची तो 2 की पावर 21 तो नेटवर्क एड्रेस हो गया, और 2 की पावर 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा होस्ट एड्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना बना 192.0.0.x। अब एक एक बिट बची हमारी यहाँ पे और 223.255.255.x, इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक होगी। क्लास डी की बात करें तो वो रिजर्व है मल्टीकास्टिंग के लिए। द हायर ऑर्डर बिट ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ आईपी एड्रेसिंग बिलोंगिंग टू डी आर ऑलवेज सेट टू। अब यहाँ पे क्या हो गया 1110 और बाकी की 28 बिट जो होगी वो होस्ट बिट होगी। तो स्टार्टिंग की हमें 0 से, क्लास ए में 0 था, क्लास बी में 10 था, क्लास सी में 110 था, अब क्लास डी में क्या है 1110। अब बाकी की होस्ट, तो क्लास डी की रेंज कितनी हो गई 224 से लेकर .0.0.0 से लेकर 239.255.255.255। क्लास ई की बात करेंगे, क्लास ई जो है वो एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च पर्पजेस के लिए है आईपी के लिए। तो आईपी एड्रेसेस ऑफ ई रेंजेस फ्रॉम 240.0.0.0 से लेकर 255.255.255.254।
तो दिस क्लास वोंट इवन डजंट हैव सबनेट क्योंकि ये रिसर्च पर्पस के लिए है, और इसमें हायर ऑर्डर बिट क्या होगी 1111, और बाकी के 28 बिट क्या हो गई हमारी होस्ट हो गई। रेंज ऑफ स्पेशल जो हमारी एड्रेसेस है, कुछ स्पेशल हमने आईपी एड्रेसेस की रेंजेस रखी है जो स्पेशल पर्पस के लिए ही होती है, तो इन्हें देखेंगे हम। तो ये है हमारी 169.254.0.0 से लेके 169.254.0.16 तक, मतलब कि 16 बिट का एड्रेस हो गया, मतलब बेसिकली 0 to 16 इस रेंज के लिए। तो लिंक लोकल एड्रेस के लिए हमने इसको रखा है। देन 127.0.0.0 से 127.0.0.8 लूपबैक एड्रेसेस है। देन 0.0.0 से लेके 0.0.0.8 ये कम्युनिकेशन के लिए है। अब असाइनिंग होस्ट आईडी, हम होस्ट आईडी को असाइन कैसे करेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं यहाँ पे कि होस्ट आईडी जो है किसी भी नेटवर्क में यूनिक होनी चाहिए। होस्ट आईडी जो है इन विच ऑल बिट्स आर सेट टू जीरो कैन नॉट बी असाइंड बिकॉज दिस होस्ट आईडी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नेटवर्क आईडी ऑफ आईपी एड्रेस, क्योंकि 000 हो गया अगर, तो वो तो होस्ट आईडी को ही रिप्रेजेंट करेगा। नेटवर्क आईडी is used to represent the network ID, right? And host ID in which all bits are set to 1 cannot be assigned क्योंकि host ID is reserved as a broadcast address to send packet to all the hosts present on that particular network. तो सारी जो host ID है वो 1 नहीं हो सकती, और सारी जो host ID है वो 0 भी नहीं हो सकती, ठीक है? उसे यूनिक रहना होगा। रूल फॉर असाइनिंग नेटवर्क आईडी की अगर हम बात करेंगे, तो नेटवर्क आईडी जो है हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है 127 से, क्योंकि 127 belong to class A address and is reserved for internal loopback functions. So all bit of network ID set to 1 and reserved are reserved for use as an IP broadcast address and therefore cannot be used. All bit of network ID set to 0 and used to denote a specific host of the local network and are not routed and therefore aren't used. तो इसमें भी यही सेम चीज़ है कि ऑल बिट्स ऑफ आईडी सेट टू 1 जो है वो भी रिजर्व्ड है और 0 भी रिजर्व्ड है, तो हम इन दोनों को यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप टेबल देखेंगे तो इसमें आपको क्लास ए बी सी डी का एक पूरा चार्ट है एक तरीके से, जिसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं सबका और इजीली लर्न भी कर सकते हैं इसे कि किसका कितना ही लीडिंग बिट है। तो लीडिंग बिट हमने शुरू की थी क्लास ए पे 0 से, देन 10, देन 110, देन 1110, देन 111 के बाद जो नेटवर्क आईडी बिट्स थी हमारी वो भी 8, 16, 24 इन दोनों में डिफाइंड है। होस्ट आईडी बिट्स कितनी है 24, 16, 8 इन दोनों का टोटल जो है वो कितना होगा 32, क्योंकि हमारा टोटल आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट की। देन टू दी पावर एन नेटवर्क आईडी के लिए और टू दी पावर एन होस्ट आईडी के लिए, ठीक है? तो टू दी पावर 7 कितना हो गया 128 और टू की पावर 24 कितनी हो गई है। इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे, तो ये नेटवर्क एड्रेस हो गया और ये होस्ट एड्रेस हो गया। उसके बाद में स्टार्ट एड्रेस जो है हमारा वो किस तरीके से बनेगा 0.0.0, क्योंकि लीडिंग बिट क्या है ये, और चलेगा कहाँ तक 255.255.255 127। अब ये खत्म हो गया हमारा, यहाँ पे एक बिट छोड़ के चलता है, 256 होते हैं ना टोटल, हम उसमें 2 बिट माइनस करते हैं, तो वो सेम चीज़ है। अब 128 से स्टार्ट होके कहाँ तक चलेगा 191.255.255.255, फिर ये पूरा खत्म हो गया 191 की रेंज, फिर 192 से 223 तक, फिर 223 वाली खत्म हो गई 224 से 239 तक, फिर 239 खत्म हो गई यहाँ पे 240 से 255.255.255.2, क्योंकि हमारी जो लास्ट रेंज होती है वो कितनी होती है 256 होती है, इसलिए, ठीक है? तो ये आपको रिमेम्बराइज करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं इनके सबनेट मास्क और आईपी एड्रेसिंग के। तो प्रॉब्लम क्या है क्लासफुल एड्रेसिंग की कि million of class A addresses are wasted and many of class B addresses are wasted where number of addresses available in class C is so small that it cannot cater the need of organization, and class D तो क्या है मल्टीकास्ट के लिए है, तो सिंगल ब्लॉक ही यूज होता है उसमें, और क्लास E तो पूरी तरीके से रिजर्व है, तो इसमें वेस्ट हो जाता है। जैसे क्लास ए और बी के पास ज़्यादा है, सी के पास में कम है, तो वेस्ट हो जाती है। तो ये इसकी प्रॉब्लम है कि वो सबकी जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल नहीं कर पाती है। तो इसे हम आगे देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड डी एंड ई, एंड 32 बिट का हमारा आईपी एड्रेस होता है जो कि
हर एक डिवाइस के लिए जो भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है उसके लिए यूनिक होता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच.